Today we'll be discussing job analysis. Job analysis is a very significant part of recruitment and selection. Recruitment and selection is the part of human resource program planning. So before initiating recruitment and selection, we do job analysis. So job analysis means basically is to carrying out information about the particular job. ओके कोई भी जॉब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसका बारे में हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं जितना जानकारी उसके बारे में हम लोग ले सकते हैं उसको कहा जाता है जॉब एनालिसिस. The definition of job analysis is that job analysis is the process to carry out information about the job, that is knowledge, skill and experience needed to carry out a job. एक पर्टिकुलर काम के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए एक एम्प्लॉय का. ओके उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक एम्प्लॉय के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, वो हम लोग जॉब एनालिसिस के थ्रू पता करते हैं. ओके सो जॉब एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर कॉन्डक्टिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ओके रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करने से पहले वी हैव टू डू जॉब एनालिसिंग. तो जॉब एनालिसिंग हैज़ टू पार्ट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. In job description, we find out the details regarding the duties and responsibilities required to do the job. एक काम करने के लिए क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए वो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं. सपोज इफ़ यू आर रिक्रूटिंग फॉर ए सीनियर मैनेजर रोल और ए सीनियर इंजीनियर रोल, फॉर दैट यू नीड टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़. उनके कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को हम लोग अगर नहीं पता करें तो हम लोग किस बंदे को उस पोस्ट के लिए चुनना है वो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं. ओके सो इन जॉब डिस्क्रिप्शन वी नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ए पर्सन इन ए पर्टिकुलर रोल हैज़ टू परफॉर्म. ओके देन वी गो फॉर job description has two subparts. One is job identification and one is job summary. Okay so what is job identification? Job identification is it consists of the title, location, name and division of a job. Job identification मतलब होता है कि identity of the job. जॉब का नाम क्या होगा, ठीक है, जॉब का टाइटल क्या होगा, जॉब का लोकेशन क्या होगा और जॉब किस डिवीजन के लिए है. सिविल डिपार्टमेंट के लिए है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए है, अगर HR रोल के लिए है, सीनियर मैनेजर है उस रोल का क्या नाम है, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, ओके, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एक्सेट्रा. तो जॉब आइडेंटिफिकेशन इज अबाउट बेसिकली एक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द जॉब. ओके कि वो जॉब किस नाम से पहचाना जाता है. And then there is job summary. Job summary consists of a little bit of information about the risk, the hazards, about the what are the duties one has to perform in that job. It is a summarized explanation about the job. Okay. Now we come to job specification. Job specification का मतलब होता है कि what are the requirements to be fulfilled in order to perform that job efficiently. Job specification is the human requirement for doing the job. That is its physical makeup and its personal characteristics. वो आदमी फिजिकली कैसा होना चाहिए उस जॉब के लिए, वो आदमी पर्सनैलिटी उसका कैसा होना चाहिए उस जॉब के लिए, वो सब इंफॉर्मेशन वी गैदर बाय जॉब स्पेसिफिकेशन. सो इन टू अंडरस्टैंड जॉब एनालिसिस इज अबाउट carrying out the details and information about a particular job. Job analysis is divided into two parts. One is job description and one is job specification. Now job description is again divided into two parts. One is job identification and job summary. What is job description? Job description about the duties and the responsibilities of the job, what a person has to do, what are the responsibility he has to take. So in job description he has two parts. One is job identification, what is the identity of the job, what is the name of the job, and job summary. Job summary means the risks and the hazards and
other things which are involved with the job. Okay, and job specification means the human characteristics of the job. The difference between job description and job specification is job description is about the duties and responsibilities a person has to perform in a job, and job specification means what specific needs are there which are to be maintained by an individual to do that job. Job specification means that what are the physical and personal characteristics a human being should have in order to do that job. Okay, so after conducting job analysis, we conduct the process of recruitment and selection, and after selection we do placement. What is placement? Placement means it is the assignment of the worker to the job for which he or she applied or and selected and found suitable. Placement is providing the right job to the right person in an organization. Okay, it is providing suitable job to the person who can perform it. ठीक है, प्लेसमेंट कैसे निर्धारित किया जाता है? प्लेसमेंट बेसिकली निर्धारित किया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन what position a person has applied for or what position a person has been selected for. So when a person is selected for a particular position, it means that that person is suitable or is found suitable to be working in that particular position. So placement is basically deciding which position to be provided to which candidates. Okay, the process of recruitment, selection and placement flows in a continuing manner so that they are not viewed separately by the HR. The process of recruitment, selection and placement are not separate, they are interconnected process in a HR function. Okay, so now after placement we will be discussing promotion and transfer. आप लोग तो जानते ही होंगे, एक बेसिक आइडिया होगा promotion and transfer में. So promotion involves a change. Promotion क्या होता है? एक change होता है. Even transfer and separation, promotion, transfer, separation, ये तीनों चीज़ें एक change है, एक बदलाव है, which is an adjustment to the size of workforce of an enterprise which can be made to cope with the changing situations. ठीक है, तो a promotion may be defined as an upward movement of an employee in an organization to another job which commands better pay and wages, higher opportunities, challenges, responsibilities and authority. So promotion is basically an upward movement. See, every organization changes, the situation changes. एक आदमी जिंदगी भर एक पोजीशन में नहीं रहता है, ठीक है. आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंस, आफ्टर सर्टेन ट्रेनिंग, एवरी पर्सन इवॉल्व्स विद द ऑर्गेनाइजेशन. उसका उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वो भी इवॉल्व करता है, ठीक है. तो दैट इवोल्यूशन मेक्स एन एम्प्लॉय ए बेटर पर्सन फॉर सम अदर पोजीशन. ठीक है, वो क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को वो एक बेटर इंडिविजुअल बनाता है थ्रू ट्रेनिंग एंड थ्रू एक्सपीरियंस, और वो कोई और अलग पोजीशन उसको वो फुलफिल कर सके. ठीक है, तो दैट इज़ वाई प्रमोशन हैपन्स. प्रमोशन इज ए अपवर्ड मूवमेंट. ठीक है, प्रमोशन क्या होता है? एक अपवर्ड मूवमेंट होता है जहाँ पे खाली पे और प्रॉस्पेक्ट एक इंडिविजुअल का चेंज नहीं होता है. वो पे बढ़ता है, उसका प्रॉस्पेक्ट बढ़ता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनका जो ऑथोरिटी है वो भी बढ़ता है. ओके, सिमिलरली ट्रांसफ़र और सेपरेशन. ट्रांसफ़र भी होता है कि जहाँ लोगों का ज़रूरत है, जहाँ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का ज़रूरत है, वहाँ पे उस कमी को कैसे पूरा किया जाता है? उस कमी को रिक्रूटमेंट के थ्रू पूरा नहीं किया जाता है. ठीक है, वो कमी को थ्रू ट्रांसफ़र पूरा किया जाता है कि जिस ब्रांच में एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ का, एक पर्टिकुलर स्किल का जो आदमी अगर है, तो उसको कोई और ब्रांच में या और कोई जगह में उसको चेंज कर देना, उसका लोकेशन चेंज कर देना, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रन. ओके, एंड इवन सेपरेशन होता है क्या कि अगर कोई आदमी ठीक से काम नहीं कर पाए, इफ़ ही इज़ नॉट सूटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एनीमोर, क्योंकि वो ऑलरेडी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था. तो अगर वो संगठन के साथ जुड़ा हुआ था और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर वो संगठन को लगता है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ नॉट सुटेबल फॉर अस राइट नाउ, even after training, even after whatever can be done, he cannot cope up with the changes in the organization, then the individual is separated from the organization.
Okay, so this is what promotion and transfer is, the basic idea about promotion and transfer. Now we'll come to transfer. As we say that transfer is a horizontal or lateral movement. ट्रांसफ़र क्या होता है, हॉरिजेंटल और लैटरल मूवमेंट होता है. कि जनरल ट्रांसफ़र क्या होता है कि वो सेम, कभी कभी क्या होता है कि एक इंडिविजुअल सेम पोजीशन में ट्रांसफ़र होता है, इन ए सेम पोजीशन, इन ए सेम लेवल. ओके, अगर कोई जूनियर इंजीनियर है धनबाद में कोई एक संगठन में, और बोकारो में अगर जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत है फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, एंड इफ़ दैट गाय इज सिलेक्टेड, देन वहाँ पे जाके भी वो जूनियर इंजीनियर ही रहेगा. ठीक है, ये डिपेंड करता है. हमें कभी कभी क्या होता है, सच इन लाइक इन बैंक्स एंड ऑल दोज प्लेसेस, ट्रांसफ़र हैपन्स व्हेन देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट. अगर उसका प्रमोशन होता है तो ट्रांसफ़र होता है. तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे. So transfer is a horizontal or lateral movement of an employee from one job, section, department or position to another. It may involve a promotion, demotion or a change in job status along with the movement from one job or a place to another. ठीक है, कि वो किसी चीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकता है. कभी कभी क्या होता है, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उस इंडिविजुअल को क्या किया जाता है, उस इंडिविजुअल को डिमोट कर दिया जाता है. वो अभी रेयर है, ऐसा आप केसेस कभी नहीं सुनोगे, बट डिमोशंस आर हैपेंस. और उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो दैट पर्सन माइट बी ए सीनियर मैनेजर और ए सीनियर इंजीनियर एंड इज ट्रांसफर टू अनदर प्लेस एज ए जूनियर मैनेजर और जूनियर इंजीनियर. So transfer is basically done based on the needs and requirements of the organization. जहाँ पर organization को लगता है I need to make a change regarding the manpower. I can add some manpower, I can subtract some manpower, but I don't want that manpower to exit the organization. Then the process of transfer happens. Okay. Now we'll be discussing a very important topic, which is ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके, सो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो गया आपका, प्लेसमेंट भी हो गया. ठीक है, नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. व्हाट ट्रेनिंग इज ए पर्टिकुलर प्रोग्राम which is created in order to help an individual know new skills, okay, or to develop new knowledge about a certain things or certain skills. ट्रेनिंग क्या होता है, एक सिस्टमेटिक सिखाने का तरीका होता है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक संगठन में सीखते हैं कि कैसे क्या काम किया जाए, कोई नया काम कैसे किया जाए, और उस नया काम करने का तरीका क्या होता है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपके संगठन में कोई नया मशीनरी और नया इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ है, तो वो जो मशीनरी और इक्विपमेंट जो इंस्टॉल हुआ है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि उस मशीनरी को और उस इक्विपमेंट को कैसे यूज़ किया जाए. ओके, ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज ओवरऑल सेट ऑफ रूल्स. ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज ए रिलेटेड प्रोसेस. ट्रेनिंग मतलब होता है कि आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है जैसे जो आपको सिखाया जाता है. डेवलपमेंट होता है जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से उस चीज़ को एनहांस करें. ठीक है, और सिर्फ स्किल नहीं, आप उस चीज़ का हर चीज़, अगर आप उस चीज़ में एक नया एंगल लेके आए, ठीक है, तो उसको कहा जाता है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज ए रिलेटेड प्रोसेस. It covers activities which improve job performance and bring about a growth of your personality. अगर आपका इंटरनल चेंज है और एक्सटर्नल चेंज है, अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो देन देयर इज ए डेवलपमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल दैट अगर आप मान लीजिए कि एमएससी करते हैं या एमटेक करते हैं एंड देन यू गो फॉर ए जॉब. ओके, देन you have to do a training. Okay, so after that training you can do a particular job, but there might be some people who are not MTech, who are only BTech engineers, but they are 10 years senior to you and they are getting more salary to you and they know a lot of things better than you. How? Because you might be trained for a particular job, but they have already in the development period, they have developed that skill. Okay, so training is basically जो दिख रहा है, which you can see, which is physically present. ठीक है,
दैट चेंजेस एंड इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड चेंज। वो एक प्लान प्रोग्राम रहता है, 1 हफ्ते का ट्रेनिंग है, 2 महीने का ट्रेनिंग है, 3 महीने का ट्रेनिंग है, बट डेवलपमेंट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, वो होते रहता है। इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच हैपन्स थ्रू आउट टाइम, ओके, एंड डेवलपमेंट हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। नाउ what is the difference between ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग इज बेसिकली ए प्लान शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है, जैसे आपका 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का ट्रेनिंग होता है, बट डेवलपमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। इट इज नॉट नाइदर प्लान्ड नॉट इट इज लिमिटेड टू ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके। ट्रेनिंग इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंस्ट्रक्शंस, टेक्निकल एंड मैकेनिकल, जनरली ट्रेनिंग टेक्निकली मैकेनिकली होते हैं। डेवलपमेंट इज रेफर टू फिलोसॉफिकल, थियोरिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल आइडियाज। डेवलपमेंट क्या होता है? वो जनरली थियोरिटिकल होता है। थियोरिटिकल होता है मतलब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज नॉट ओनली योर स्किल सेट बट योर साइकोलॉजी ऑल्सो changes and adapts to the new environment throughout time, okay. Then what are the purposes of training? So why training is conducted? It is conducted to increase productivity, to improve quality, to improve health and safety standards in the organization, ठीक है। to obsolescence prevention, obsolescence prevention मतलब ट्रेनिंग इसलिए कराया जाता है कि कोई जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑब्सोलीट नहीं हो जाए, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यूजलेस नहीं हो जाए, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर एम्प्लॉयज फ्रॉम बीइंग यूजलेस, दे आर ट्रेंड फॉर न्यू स्किल सेट्स सो दैट दे कैन स्टिल कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अडॉप्ट टू चेंजेस, ओके। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन ट्रेनिंग प्रोसेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम? सो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ अ वेरी प्लान्ड प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्लानिंग सर्टेन फैक्टर्स में डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किया जाए। सपोज द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ ट्रेनिंग, कि क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग का, किस डायमेंशन में, किस जगह पे ट्रेनिंग का ज़रूरत है। देन ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, दैट इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स फ्रॉम द ट्रेनिंग। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संगठन उस ट्रेनिंग के जरिए क्या चाहता है अपनी स्टाफ से, ठीक है। देन देर इज ऑपरेशंस और ऑपरेशंस एनालिसिस। ऑपरेशंस एनालिसिस मतलब होता है कि वो संगठन में, जिस डिपार्टमेंट में जहाँ पे ट्रेनिंग होना है, वो डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। ऑपरेशन एनालिसिस focuses on the task or job regardless of the employee doing the job. It includes the determination of what the worker must do and the specific behavior required to perform the job effectively. Operations analysis में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि लोग काम कैसे करते हैं, लोगों का काम करने का क्या तरीका है, लोगों का काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, और क्या बिहेवियर पैटर्न, क्या पर्सनैलिटी उन लोगों का होना चाहिए उस काम के लिए, ओके। So this analysis is done before training. Then there is man analysis. Man analysis मतलब manpower analysis. Man analysis reviews the knowledge, skills and attitude of the manpower available. जो manpower है उसका knowledge, skill और attitude उसको analyze किया जाता है, उसको review किया जाता है, so that उस तरह का training provide किया जाए। अगर skilled manpower है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर स्किल मैन पावर है तो ट्रेनिंग उनके लिए अलग टाइप का होता है, अगर अनस्किल्ड मैन पावर है तो ट्रेनिंग उनके लिए अलग टाइप से डिज़ाइन होता है। सो एनालिसिस ऑफ मैन पावर इज डन, ओके। देन देर इज गेटिंग रेडी फॉर द जॉब। इन दिस स्टेप इट इज डिसाइडेड हु इज टू बी ट्रेन्ड, हाउ एंड which department and what is the purpose of the training is, and how the trainees are to be prepared to be trained, okay। इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रेनिंग शुरू होने के लिए जो भी काम ज़रूरत है, जो भी प्रिपरेशन ज़रूरत है, वो किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन एंड नॉलेज, द ऑपरेशन, द ट्रेनर शोज दैट हाउ द जॉब इज डन, ठीक है। द ट्रेनर डिस्प्लेज दैट हाउ थिंग्स आर टू बी डन, हाउ द ट्रेनिंग, why the training is conducted. They try to explain the reason for the training, and they try to help the manpower understand the requirement of that training. ये समझाते हैं कि ये ट्रेनिंग क्यों रिक्वायर्ड है और इस ट्रेनिंग से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, एंड हाउ द ट्रेनिंग इज डन, ठीक है। सो देन देर इज परफॉर्मेंस ट्राईआउट्स। परफॉर्मेंस ट्राईआउट्स मीन्स द ट्रेनी इज आस्क्ड टू गो थ्रू द जॉब सेवरल टाइम्स। जो ट्रेनिंग ले रहे हैं
उनको उस काम को करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको वो जो ट्रेनिंग है उसमें उनको काम को हेल्प किया जाता है करने में। और परफॉर्म कैसे कर रहे हैं वो ट्राई आउट्स होते हैं। ट्राई आउट्स मतलब वो प्रैक्टिस होता है कि कैसे आप करें, कैसे उसको एक्टिवेट, उस काम को कैसे उसको कंप्लीट करें, उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करें, वो देखा जाता है, उसको सुपरवाइज किया जाता है। अगर गलतियां होती हैं तो उसको फिर चेक किया जाता है बिफोर एक्चुअली अप्लाइंग इट टू द जॉब। एकदम प्रैक्टिकली उसको करने के पहले वो ट्रेनिंग करवाया जाता है। ठीक है, ये इसलिए करवाया जाता है ताकि एक्चुअल ट्रेनिंग में कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो। देन देयर इज़ अ फॉलो अप इज़ डन दैट वेदर द ट्रेनिंग हैज़ बीन इफेक्टिव। जो सिखाना था क्या वो लोग सीख पाए हैं, अगर नहीं सीख पाए हैं तो क्यों नहीं सीख पाए हैं, और अगर सीख लिए हैं तो वो किस तरह से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। Okay, so this is basically the process of training and what is the difference between training and development along with job analysis, and what is the role of job analysis in recruitment and selection. In the next class we will try to discuss what are the different types of training and where this type of trainings are important. Okay, thank you.